This is a video on the locomotory structures in eukaryotic cells, that is cilia and flagella, right? Cilia flagella जो है वो क्या है? cilia और flagella ये locomotory structures हैं. Locomotory structures का मतलब they help in the locomotion, right? And they protrude from the cell surface. So cilia and flagella जो हैं, they are present in a large number of organisms in their cells. So for example, if we talk about protistans कौन है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लाइक पैरामीशियम, लाइक यूग्लिना. ये प्रोटिस्टेंस हैं. पैरामीशियम में द सेल इज कवर्ड बाय सीलिया. यूग्लिना में देर आर 2 flagella. And the cilia and flagella, they propel the organism in water. Right? So cilia and flagella are found in unicellular eukaryotic organisms like paramecium and euglena. Then the sperms of animals, जितने भी एनिमल्स हैं, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्पॉन्जेस जो सबसे लोअर एनिमल्स हैं टू आप हाईएस्ट एनिमल्स तक जाएं, दैट इज मैमल्स. सब में जो स्पर्म्स हैं दे आर ऑल फ्लैजिलेटेड. इनके जो स्पर्म्स हैं वो फ्लैजिलेटेड है, राइट? And then the gametes and spores of alga. Alga जो है वो क्या है? Alga are aquatic. तो alga के जो gametes हैं और spores जो हैं ये क्या है? They are flagellated. इसी तरह से the gametes and spores of some fungi, not all fungi, some fungi which are aquatic, उनके भी जो gametes और spores हैं वो क्या है? Flagellated है. Then the sperms of certain plants, sperms, और अगर हम कहें the male gametes of certain plants, जैसे bryophytes, pteridophytes, इनके जो स्पर्म्स हैं वो क्या है? फ्लैजिलेटेड है. So these are some of the examples where do you have cilia or flagella on the cell surface, and the cilia and flagella they help in the locomotion. They are called as the locomotory structure. So you can have an unicellular organisms like paramecium, amoeba, then the sperms of all the animals, the sperms are flagellated. And then the alga and some fungi, their gametes and spores have flagella. And then bryophytes, pteridophytes, right? These plants, they have their sperms or the male gametes which are flagellated, right? So we'll talk about the structure of the cilia and the flagella. Here we are talking about the cilia and flagella of eukaryotes only,
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की कि यूकैरियोट्स, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोट्स. सो यूकैरियोट सीलिया फ्लैजुला का क्या स्ट्रक्चर है? दिस आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ दी सीलिया और फ्लैजुला. नाउ सीलिया फ्लैजुला जो है, if I draw a cell, for example this is a cell, and this cell has a cilia or a flagella, right? So this is a cell, and this cell on its surface has, say, a cilia or a flagella, and this cilia or flagella, it consists of it is a hair-like structure. The cilia or flagella is a hair-like structure, and it consists of a central core, और जिसको हम बोलते हैं एक्सोनीम, राइट, surrounded by or enshaded by प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे जो मैंने दिखाया ये सेल दिखाया है, एंड सेल हैज दिस, से फॉर एग्जांपल सीलिया, एंड दिस सीलिया इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर. दिस सेंट्रल कोर इज एक्सोनीम, ये एक्सोनीम है, which is called as the central core, which is enshaded by or which is covered by the plasma membrane. ये मेरी plasma membrane है. So cilia and flagella जो है, they are covered by plasma membrane. They are the hair-like structures that protrude out from the cell surface, and each cilia and flagella, it consists of a central core which is called as an exoneum, which is surrounded by the plasma membrane. तो ये plasma membrane है which is surrounding the exoneum. This whole structure is called as cilia. So cilia consists of an exoneum which is enshaded by the plasma membrane, right? This exoneum or the central core, it consists of microtubules. ये exoneum microtubules का बना हुआ है, right? So we'll see the structure of the cilia now. If you cut a section through it, अगर आप इसका transverse section काटें, नो, इस तरह से अगर आप इसका TS काटें, say for example अगर मैं कहूँ कि this is my cilia, अगर मैं इसका TS काटूँ, नो, transverse section, तो अगर मैं इसका transverse section काटूँगी तो मुझे ये cilia flagella ऐसा नज़र आएगा. This is a TS through the, this is a transverse section through the cilia and flagella. ये TS है. ये मैंने जो है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, तो ये बाहर जो है मेरा क्या है, इसमें बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, और बीच में ये है मेरा एक्सोनीम. ये जो सारा मैंने बनाया है ये एक्सोनीम है. दिस इज माय सीलिया और फ्लैजुला इन ट्रांसवर्स सेक्शन. सो ये मेरा बाहर जो है, दिस इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बीच में मैंने क्या बनाया है, एक्सोनीम बनाया है, और मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, ऐसे मैंने इसको काटा है. तो अगर आप ऐसे काटेंगे तो ये आपको, ये बाहर आपको नज़र आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये अंदर जो है ये सारा, दिस इज माय सेंट्रल कोर विच इज कॉल्ड एज एक्सोनीम, राइट. और ये जो एक्सोनीम है सारा, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये जितनी मैंने यहाँ पे बनाई हैं ये सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. तो अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स का, देन जो एक्सोनीम है विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो जो एक्सोनीम है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर है, एक्सोनीम इट हैज़ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स.
राइट. तो दिस इज माई सीलिया इन TS. ये मेरा सीलिया है विच इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मेरा एक्सोनीम है, एंड दिस एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो है 9+2. नाउ व्हाट आई मीन टू से बाय 9+2 इज कि इसमें 9 जो है वो 9 जो है पेरिफेरल 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं of microtubules, और इसमें 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. राइट. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. बाहर जो है 9 डबलेट्स हैं. नो, दीज आर ऑल डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और बीच में जो है 2 सिंगलेट्स हैं. सो द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन एक्सोनीम इज 9+2. इट हैज 9 पेरिफेरल डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स and 2 central singlets of microtubules. So ये सारी मैंने microtubules बनाई हैं, and these microtubules they are also called as subfibers. हम microtubules को subfiber भी बोलते हैं. Microtubules they are also called as subfiber A and subfiber B, right? So ये microtubules of doublet की, and these are also called as subfibers. This is subfiber A, B, AB, 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 and so on. So this is doublets of microtubules. The microtubules are also called as subfibers. We can call them as subfiber A and B in each doublet, right? And each microtubule, अगर हम microtubule के structure की बात करें तो microtubule की जो वॉल है it consists of 13 longitudinal protofibrils, right? अब जो है we'll talk about the structure of a microtubule. एक microtubule का क्या structure है, राइट. तो एक माइक्रोट्यूब्यूल जो ये जो हमने सीलिया को काटा है, ये इसके ट्रांसफर सेक्शन के अंदर काटा है, राइट. दिस इज अ TS. ये हमने TS काटा है इसका. तो बाहर मुझे नज़र आ रही है TS में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये मेरा एक्सोनीम है, और इसमें ये डबलेट्स है. इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल, तो एक माइक्रोट्यूब्यूल बिल्कुल ऐसी है. दिस इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूल. नो, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये जो है इट इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स. ये एक तरफ से मैंने यहाँ खुली हुई है, ये दोनों तरफ से खुली है. माइक्रोट्यूब्यूल का ये स्ट्रक्चर है, राइट. और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डबलेट. तो ये मैंने एक डबलेट बनाया है. नो, तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है देर आर 9 डबलेट्स. ऐसे 9 डबलेट्स प्रेजेंट है. तो 9 डबलेट्स हैं. हमने तो उसको क्या किया, वी हैव जस्ट कट अ सेक्शन थ्रू इट. तो वो जो 9 के 9 डबलेट्स हैं जो ऐसे प्रेजेंट हैं, उसको मैंने TS में काट दिया है. तो TS में मैंने काटा, तभी वो मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं. लेकिन अगर मैं एक्चुअली देखूं कि जो मेरा ये एक्सोनीम है, ये जो मेरा पूरा एक्सोनीम है, जो बीच वाला पोर्शन है, इसमें 9 ऐसे जो है लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे डबलेट्स हैं. जैसे हम हेवर्शियन सिस्टम की बात करते हैं बोन में, हेवर्शियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स. ऐसे जो एक्सोनीम है उसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं पेरिफेरी पे, दे आर इन अ डबलेट. तो ये मैंने एक डबलेट दिखाया है. तो ऐसे जो है 9 डबलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. So these are the 9 doublets of microtubules. So definitely if you will cut a section like this, you will see these doublets like this. तो ये मैंने जो है, ये मेरे सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, डबलेट्स हैं, विच आर कट इन दी TS. और अगर मैं एक माइक्रोट्यूब्यूल की बात करूँ, से दिस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल की जो है वॉल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल की वॉल है,
ये इसकी जो है वो कैविटी है। और माइक्रोट्यूब्यूल की वॉल में देर आर 13 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम। इसकी जो वॉल है वो 13 लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम्स की बनी है, विच आर कॉल्ड एज प्रोटोफाइब्रिल्स। और हर प्रोटोफाइब्रिल जो है इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। So this is my microtubule. This is one microtubule. In the periphery you have microtubules in doublets. ऐसे लंबे लंबे जो है 9 doublets हैं, और वो 9 doublets अगर ऐसे होंगे और उनको TS में काटूंगी तो फिर मुझे वो ऐसे नजर आएंगे। बट अदरवाइज लॉन्गिट्यूडिनल व्यू अगर आप पूरे सीलिया का देखें, सो यू हैव लाइक दिस, यू हैव 9 doublets. And the wall of the microtubule, it consists of, this is the lumen. The wall consists of 13 protofibrils, right? And each protofibril consists of tubulin protein. तो अगर मैं एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाती हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरी एक माइक्रोट्यूब्यूल है, राइट? दिस इज माई माइक्रोट्यूब्यूल। हमने इसको हमारा TS में काटा हुआ है। ये माइक्रोट्यूब्यूल की क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल की वॉल है और ये माइक्रोट्यूब्यूल का ल्यूमन है। और ये जो वॉल है माइक्रोट्यूब्यूल की, इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफाइब्रिल्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे वॉल के अंदर 13 प्रोटोफाइब्रिल्स हैं। ये मैं प्रोटोफाइब्रिल्स बना रही हूँ। And each protofibril, it consists of tubulin protein. This is a structure of a microtubule. ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूल की तरह होती है, जैसे एक पाइप होता है विद अ कैविटी, और उसकी वॉल होती है। और जो वॉल है उसकी, इट कंसिस्ट ऑफ 13 प्रोटोफाइब्रिल्स। एंड ईच प्रोटोफाइब्रिल, ये प्रोटोफाइब्रिल्स हैं, ये प्रोटोफाइब्रिल्स हैं। एंड ईच प्रोटोफाइब्रिल इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। दिस इज माई ट्यूब्यूल। सो दिस ट्यूब्यूल इज जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की तरह है, with a lumen, with a wall, and the wall is made up of 13 protofibrils. यहाँ पे 13 longitudinal protofibrils and each protofibril consists of the tubulin proteins, right? तो ये जो है this is the structure of a microtubule. तो यहाँ पे जो है ये मैंने आपको microtubules दिखाई हैं, and each microtubule it consists of 13 protofibrils. So ये जो dot आप देख रहे हैं ये protofibrils हैं, because each the wall of each microtubule it consists of 13 protofibrils. No, ये protofibrils है 13. So the wall is made up of 13 protofibrils. So this is how I'm depicting the wall of the protofibril. It consists of 13 protofibrils, right? So these are the doublets of microfibrils. And then the subfiber A, no, it has 2 arms. तो ये मेरे जो है ये मेरा हो गया doublet. This is my doublet of microtubules, right? और the microtubule or subfiber A, it has paired dynein arms. ये डायनिन आर्म्स हैं। तो अगर मैं ये देखूं, दिस इज माई डबलेट, अगर मैं बोलूँ ये मेरा डबलेट है, राइट? तो डबलेट में मेरा आई हैव सब फाइबर ए एंड बी, और जो सब फाइबर ए है, ऑल अलोंग इट्स लेंथ यू हैव इवनली स्पेस्ड डायनिन फाइबर्स। तो अगर ये है तो यहाँ पर एट इक्वल डिस्टेंस आपको पेयर्ड आर्म्स मिलेंगी। Those paired arms are called as dynein arms. तो ये मेरी सब फाइबर A है and the sub fiber A all along its length, अगर आप longitudinal देखेंगे, it has evenly spaced
डायनेन आर्म्स, राइट। तो सब फाइबर ए जो है, सब फाइबर ए, it has paired dianen arms, right, evenly spaced all along its length. ठीक है। और ये डायनेन आर्म्स का क्या फंक्शन है? ये जो डायनेन आर्म्स हैं, दे हैव एटीपीएस एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। एटीपीएस क्या करता है? इट ब्रेक्स द एटीपी इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एटीपीएस एंजाइम जो है वो एटीपी को ब्रेक करेगा, एटीपी को ब्रेक करेगा। दिस इज ट्राइफॉस्फेट, ब्रेक करेगा, ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाएगी और बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड विद द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। दिस इज यूज्ड फॉर मूवमेंट of cilia or flagella, because the cilia and flagella they have to move, ये locomotory structures are, right? So movement के लिए क्या चाहिए? Energy चाहिए. This energy comes from ATP. So the dianean arm, they have ATPase enzymatic power. They can break the ATP to release energy, and this energy will be used for the locomotion or for the movement of the cilia and flagella, right? And then, so this was about the doublets, peripheral doublets of microtubules. बाहर microtubules doublets में है, and each tubule is just like a tube, एक ट्यूब की तरह है, with a cavity, with a wall, and the wall consists of 13 longitudinal protofibrils which are made up of tubulin protein, and the subfiber A, it has paired dianean arms which help in breaking the ATP to release energy. The dianein has enzymatic powers, and energy is used for the movement of the cilia or flagella, right? And then the two central microtubules, ये बीच में दो central microtubules हैं, they are not in doublets, ये singlet में है, and they are joined by a bridge, right? So ये जो है मेरी, ये दो, ये मेरी है central singlet microtubules, right? Just like these microtubules, they also have a wall which is made up of 13 longitudinal protofibrils, लेकिन ये pairs में नहीं है, और इन दोनों के बीच में क्या है? ब्रिज है। तो जो बीच वाली जो दो हैं, they are in singlet, वो singlet में है ऐसे, और उनके बीच में क्या है? ब्रिज है, ठीक है। और जो ये this is the bridge, ये मेरा ब्रिज है, और जो दोनों सिगलेंट हैं, दे आर कवर्ड बाय अ कॉमन शीथ, ये कॉमन शीथ है, ठीक है। तो बाहर 9 डबलेट्स हो गए, बीच में 2 सिंगलेट हो गए, दोनों सिंगलेट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज, एंड द 2 सिंगलेट्स आर कवर्ड बाय अ कॉमन शीथ। और जो सब फाइबर ए है वो कॉमन शीथ के साथ कनेक्टेड है बाय रेडियल स्पोक्स, ये रेडियल स्पोक है, राइट? और जो डबलेट्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड है, ये डबलेट्स भी आपस में कनेक्टेड है, नो, these are called as linkers, right? So this is the structure of the cilia or the flagella in eukaryotes. So this is the plasma membrane which is covering the central core or exoneme of the cilia. ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसा हमने दिखाया आपको ऐसा नजर आएगा, ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में एक्सोनीम है। अगर इस एक्सोनीम को देखूं तो इसमें 9 बाहर ऐसे लंबे डबलेट्स हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसे बाहर डबलेट्स होंगे,
1 देन 2 देन 3 देन 4 ऐसे। ये मैंने एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाई है। ये ट्यूब्यूल के ऐसे डबलेट्स हैं और बीच में 2 सिंगलेट है। और अगर मैं इसको जो है, इसके ऊपर सारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे 9 डबलेट्स हैं और पूरे के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं सेक्शन काटूंगी तो मुझे जो डबलेट्स हैं वो ऐसे टीएस में ऐसे नज़र आएंगे, राइट। तो ये जो है मेरा सीलिया फ्लैजुला का टीएस है। ये बाहर 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं, बीच में 2 सिंगलेट्स हैं। और अगर हम एक एक माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो जो उनकी वॉल है ये वाली, इट इज़ मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफाइब्रिल्स। ऐसे इसमें प्रोटोफाइब्रिल्स हैं एंड ईच प्रोटोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। सो दिस इज माय माइक्रोट्यूब्यूल। ये मैंने माइक्रोट्यूब्यूल बनाई है, ठीक है। और ये इसका ल्यूमन है और ये इसकी वॉल है एंड द वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटोफाइब्रिल्स। ये 13 प्रोटोफाइब्रिल्स है एंड ईच प्रोटोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये मेरे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं एंड देन बीच में मेरे 2 सिंगलेट्स हैं। दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। द सिंगलेट्स आर कवर्ड बाय अ कॉमन शीथ और जो सब फाइबर ए है वो कॉमन शीथ से कनेक्टेड है। डबलेट्स आपस में लिंक्ड है और हर जो सब फाइबर ए है ऑल अलोंग इट्स लेंथ, क्योंकि एक एक माइक्रोट्यूब्यूल ऐसी है, राइट। तो ऑल अलोंग इट्स लेंथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर डायनिन की आर्म्स मिलेंगी, राइट। एंड दीज डायनिन आर्म्स जो हैं दे हैव दी एंजाइमेटिक पावर। एटीपीएस एक्टिविटी है और ATPase will break the ATP to release energy which is used for locomotion. So this is the structure of the cilia and flagella, right? I hope you must have understood.